RG next one says, is our music industry dying? It's already dead for the past 20 years, mere bhai. Assalamualaikum Junaid bhai, I'm writing this from Islamabad and I need to get this off my chest. Is our music industry even alive anymore? Or are we just pretending it is? Everyone keeps talking about we're setting on some musical renaissance, but since 2015, what have we really done? A couple of viral hits, sure. But outside of that, silence. No consistent hits, no sonic identity for the new generation, and definitely no new breakout artists making waves. There's no rise of the next big thing, no emerging bands hitting the mainstream, and the ones that are worth listening to, like Sikandar Ka Mandir, Takatak, Poor Rich Boy, Shaji, Janubi, Khargosh, Muru, they're incredibly talented but barely get the spotlight they deserve. It's criminal, honestly. Gone are the days when someone like Junoon or Nusrat Fateh Ali Khan could break language barriers and go global. Now we can't even break into our own playlist. And don't even get me started on Coke Studio. We've been milking that cow dry for years. Every season, same hype, same formula, same meh. No new soundscape, just a fancy reboot with 14 cameras and nothing to show for it 2 weeks later. Meanwhile, the rest of the world has moved on. Music isn't just music anymore. Tours are turning into festivals. They've become full blown audio visual experiences. You attend a concert now, and it's like entering a world built around a story, a sound, a culture. Artists around the world are using shows to spread messages, art, and their identity. It's a celebration, a statement. Diljit. And I'm not even into the whole let's compare with the West mindset, but facts are facts. All it takes is solid management, experts from abroad, not influencers who got the job because they're friends with the organizer, and a support system that cares. But we falter every time. I've realized one thing. Pakistan thrives in talent. We are a goldmine of skill, expression, raw creativity. But the moment that talent needs to be backed with technical, logistical, and managerial expertise, we crumble like no one else. You can see this pattern in music, in sports, in visual arts, in craft, even in startups. We shine in individual brilliance, but fail to build systems that carry that brilliance forward. I don't know, man. Maybe I'm just venting, but do you feel the same? Hope you touch on this in Ask and Swag. Love and respect always. So ये बहुत अच्छा सवाल है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी जो है बिल्कुल ही डेड है, कोई ख़ास चीज़ बनती नहीं है, जो अच्छे आर्टिस्ट इन्होंने जो नाम लिए, इंडी म्यूज़िक का यहाँ पे इतना कल्चर मैंने देखा नहीं है उसके अराउंड। जैसे अनूप जैन के अराउंड आप देखते हो, इसका टूर्स होते हैं एंड ऑल। यहाँ पे हमारे इंडी बैंड्स को वो हाइप नहीं मिलती। और जैसे कि कहा कि जुनून एंड नुसरत फ़तेह अली वर द लास्ट हु ब्रोक द लैंग्वेज एंड लिटरल बैरियर्स अराउंड द वर्ल्ड। और कोक स्टूडियो एक ही चीज़ चलती आ रही है पिछले 16-18 सालों से। अब देखे रह देखे वही कोक जिसको सब बॉयकॉट करते हैं वही म्यूजिक दे रही है, वरना और तो म्यूजिक बनता नहीं है। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम कोई एल्बम रिलीज हुआ, बट खैर अब एल्बम का ज़माना भी नहीं है, इट्स ऑल स्पॉटिफाई नाउ। सो लोग सिंगल्स में ज़्यादा फोकस रखते हैं। सो वी गेट हिट्स, हर 4 महीने में एक आध गाना आ जाता है। जैसे अब फ्यूजिक का गाना आया, या आशिर वजहात का बहुत चला, ग्लोबल चार्ट्स में गया। या उससे पहले एक और गाना था यार, वो जो 4 बच्चे हैं नाजोबाद के, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम। सो वो चीज़ आ जाती है यार। अगर आप पुराने म्यूज़िक की वो देखें ना, म्यूज़िक वीडियोस पुराने गानों की, तो अक्सर जो यूट्यूब पे वीडियोस डली हुई हैं वो या तो MTV की हैं, या इंडस म्यूज़िक की हैं, या प्ले आज वालों का जो चैनल था, या आर्क टीवी, ये तो, और या द म्यूज़िक, ये 5 चैनल। वी हैड 5 चैनल्स डेडिकेटेड फॉर म्यूज़िक ओनली। 5 म्यूजिक के चैनल थे भाई, अब एक भी नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा ले, आप कोई भी चीज उठा के देख ले, आपको डिटेरियोरेशन ही मिलेगी। आप अपने आप को पहले से पीछे ही पाएंगे। जैसे कि देयर इज एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड द अमजद ट्विंस। सो वन ऑफ द, अब वो ट्विंस क्यों है, आई ओनली सीन वन गर्ल, क्या पता 2 बहनें हो। आई नेवर फोकस ऑन द ट्विंस पार्ट। खैर, तो उन्होंने वो मिस बेगम नवाजिश अली, जो अली मोइन नवाजिश कह रहा हूँ, सॉरी, वो तो A लेवल वाला बॉय है। अली क्या नाम है उसका, अली सलीम, जो करते थे शो अर्ली 2000 में मुशर्रफ एरा में। सो ही वुड ड्रेस अप लाइक वो ड्रैग में शो करते थे बेसिकली। इमेजिन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान अ ड्रैग क्वीन इज डूइंग अ टीवी शो। आज के दौर में कर सकते हैं? तो अगर आप उस तरह देखें ना, तो आपको चीज़ें रिवर्स में ही दिखती है। 5 म्यूज़िक चैनल, आज एक भी नहीं है। सिर्फ कोक स्टूडियो का यूट्यूब चैनल है जो साल में एक बार एक्टिव होता है। उसमें भी अब कोक को लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। और उसमें भी हर सीज़न में एक आधी हिट निकलता है। ब्लॉकबस्टर और पसरूड़ी, पिछले 5 सालों में मुझे इसके अलावा कोई इतने बड़े बड़े गाने।
सुना ही नहीं थी। सो सेम फॉर्मेट है, वो जैसा कहा कि 14 कैमरे होते हैं और विजुअल्स पे जोर होता है, कोई ख़ास चीज़ निकलती नहीं है। और ये कि म्यूज़िक के अराउंड टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट के अराउंड मैनेजमेंट नहीं है। और ये जो लास्ट टाइम जो क्रिकेट के ऊपर सवाल आया था, उसमें भी मैंने ये बात मैंने मेंशन की थी कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट की बहुत कमी है, हमें चीज़ें मैनेज नहीं करने आती। टैलेंट का क्या करना है जब आपको वो मैनेज ही ना करना है। यही वजह है कि आप क्रिकेटर्स को देखते हो द वे यू सी देम। सिमिलरली हमारे जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनके पाकिस्तान में तो चलो इंडियंस नहीं आ सकते, मगर उनके जितने भी टूर होते हैं बाहर मुल्कों में, वो इंडियंस मैनेज कर रहे होते हैं, खा वो आतिफ हो, खा वो राहत फ़तेह अली हो। उसकी प्रोडक्शन और मैनेजमेंट इंडियंस कर रहे होते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू गेट शिट डन। हमारे यहाँ हम कभी, आई थिंक वही वाला मसला है कि दिस इज वाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी कभी थ्राइव नहीं कर सकी। वी कांट वर्क लाइक अ टीम। आई थिंक हमारे डीएनए में ये है ही नहीं टीम वर्क, इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आपको इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज बहुत मिलेंगी, बट टीम वर्क शायद ही कोई मिले। ठीक है, इसलिए हम अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट भी करनी होती है तो 92 का वर्ल्ड कप जाके सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हुए हुए 33 ईयर्स हो चुके हैं। थैंक यू। जी जी, थोड़ी देर में खाता हूँ, चेक करें भाई। खैर, सो हमें ना, क्योंकि हमारी ईगोज बहुत बड़ी है, और अब को आप किसी आर्टिस्ट को समझा के दिखा दो ये बात कि जी मैं आपको मैनेज करूंगा, बोलेगा तू क्या, तू होता कौन है, साले मैं हूँ सब कुछ। सो हमारे यहाँ ना हमारे सुनने की आदत नहीं है किसी और को, और अगर ख़ुद को गलती से कोई मुकाम मिल जाए तो कहते हैं मैं ही मैं हूँ, बाकी सब तो एम ही है। ऊँट जो है, ऊँट बड़ा इन्जॉय करता है अपने आप को शहर देहात में रख के, क्योंकि वो सबसे ऊंचा होता है, और कमज़ोर इंसान की निशानी यही होती है, वो अपने छोटों में रहता है, वाह वाह करने वालों में, या जिनको वो ऊपर से नीचे देख सके। लेकिन जब ऊँट जाता है हिमालय के नीचे, तो ऊँट फिर ऊपर देखता ही नहीं, कहता ये क्या बला आ गई, केटू का पहाड़, नांगा पर्वत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरा बराबर भी नहीं हूँ उसके सामने। तो हमने बहुत सारे ऊँट बनाए हुए जो किसी की सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट वाला टैलेंट भी यहाँ नहीं होगा, होगा, बट हमें काम करना आता नहीं है। साहब का मूड जो होगा वही होगा। दिलजीत जितना भी बड़ा स्टार हो जाए, आई एम प्रीटी श्योर वो अपनी मैनेजमेंट की उसी तरह सुनता होगा जिस तरह एक शिष्य अपने गुरु की बात मानता है, राइट। हमारे यहाँ कहते हैं मैं स्टार हूँ, तू कौन है। तो ऐसे एटीट्यूड में आप थ्राइव नहीं कर सकते। हाँ, यूड बी लकी, यूल हैव हिट्स दिस एंड दैट। सो आखिरी प्रॉपर सुपरस्टार वो आतिफ असलम दैट वी हैड इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। सो 5 चैनल होते थे, अब हमारे पास जीरो चैनल है। अगर आप इसी के दिलजीत के स्टार्ट्स निकाल लें, दिलुमिनाटी के, ही डिड अ ग्लोबल टूर मैन, ही मेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। चलो दिलजीत तो फिर रीसेंट है। हिमेश रेशमिया इज बैक, कॉन्सर्ट्स कर रहा है दबा के। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स आर्ट्स है। हम आर्ट को मानते नहीं है, हम म्यूज़िक को हराम कहते हैं और म्यूजिशियन को कंजर कहते हैं, लेकिन स्पॉटिफाई के बगैर हमारा जिम, हमारी गाड़ी की राइड, हमारा रात को बिस्तर में लेटना होता ही नहीं है, गुजारा ही नहीं है। लेकिन कंजर भी उसी को कहते हैं। सो रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम रिस्पेक्ट नहीं करते। सो जब आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप अगले का टिकट भी नहीं खरीदोगे, आप बोलोगे मैं गेट फलांग के हूँ। यार इंडिया में ऐसा होता है? ज़रा कमेंट में बताएं कि किसी का कॉन्सर्ट है और फलांग के दीवार कूद के आ गए। यहाँ बहुत होता है, जितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो सब में होता है, बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट एनीथिंग। तो हम क्यों दे 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, फक इट। हम डाउनलोड भी करते हैं, पायरेसी भी हम प्रोमोट करते हैं। सो वी डोंट रिस्पेक्ट। कल एक रील मेरी नज़रों से गुजरी, कोई बुक स्टोर वाले साहब थे, वो वॉज जस्टिफाइंग पायरेसी कि भाई 10,000 की किताब हर कोई नहीं खरीद सकता, तो मैं फोटो कॉपी करके बेचता हूँ, इल्म सबको जाना चाहिए। व्हाट अ फकिंग स्टूपिड लॉजिक। और नीचे हर बंदा देखें, द क्राइसिस इन पाकिस्तान इज द ओनली क्राइसिस दैट आई सी, वो ये कि हमारी सही और गलत की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है, तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। हम कहते हैं कि हम ओनरशिप किसी की लेना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जितने लोग कमेंट कर रहे थे, अब मैं यार मुंह नहीं लगता लोगों के भाई फजूल में, क्योंकि गटर में बात कुछ पत्थर मारोगे तो आप ही के ऊपर आएगा। तो यही अगर मैं जो लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं है, तालीम तो फैलनी चाहिए, तो इसी तरह अगर मैं आपकी गाड़ी सुबह मास्टर की से
आपकी गाड़ी आपके गैराज से निकाल लूँ, ये कह के कि भाई मैं जो गरीब लोग हैं जो अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते रिक्शा का किराया, तो मैं आपकी गाड़ी में उनको छोड़ाया करूँगा। अच्छा काम तो हो रहा है। वैसे भी सुबह आपकी गाड़ी खड़ी है, आपने तो 8 बजे उठना है, मैं तो सुबह 5 बजे लेके जा रहा हूँ। वो आपको कबूल नहीं होगा क्योंकि वो आपका माल है। इसी तरह जो राइटर है जिसने इतनी मेहनत करके सालों की रिसर्च करके एक किताब लिखी है, वो तो आपके बाप का माल है। आपने राइट क्लिक किया, टॉरेंट किया, पीडीएफ डाउनलोड किया, खल्ली वल्ली, उसकी मेहनत जाए भाड़ में। उसको रिवॉर्ड क्यों मिल, वो क्यों अगली किताब लिखे? यू आर डिस्करेजिंग हिम फ्रॉम राइटिंग अनदर बुक, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, उन्होंने तो चोरी करना है। तो हमारे यहाँ ना सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो गई है, और यही हमारा क्राइसिस है और कुछ भी नहीं है। बाकी ये मसले हर जगह होते हैं, करप्शन के और इनटॉलरेंस और ये वो सेकेंडरी है। बेसिक बुनियाद, अबे जब बुनियाद ही गलत है, सही और गलत की तमीज़ नहीं है, जब पता ही नहीं है कि ये रास्ता बर्बादी का है या आबादी का है, और बर्बादी पे सब तुले हुए हैं, तो फिर बात ही ख़त्म। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग। सो सिमिलरली लाइक आई सेड, बिकॉज वी डोंट ट्रीट आर्ट्स रिस्पेक्टफुली, तो हम उसके अराउंड हर चीज़ को बेकार ही समझते हैं। फिर यहाँ पे टूर्स का कोई इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, इतने वेन्यूज़ नहीं है, और कोई आर्टिस्ट क्या ही बनाएगा टूर करके? वो म्यूज़िक बनाए क्यों? उसको स्पॉटिफाई भी अच्छे पैसे नहीं देगा, वो वहाँ से भी रगड़ा जाएगा। हमारे दोस्त ने एक कॉन्सर्ट किया, ठीक है, तो उनसे टैक्स वालों ने रिश्वत मांगी 72 लाख रुपए। मतलब कॉन्सर्ट से 4 घंटे पहले बोला 72 लाख दो वरना कॉन्सर्ट होने नहीं देंगे, बोलेंगे कि जी एनओसी रिवोक हो गई है। अब ऐसे मुल्क में आप आर्ट्स फैला के दिखाओ। 72 लाख से रिश्वत नीचे आई 5 लाख पे, और वो भी पता है क्यों आई? क्योंकि 50 टिकट ब्यूरोक्रेसी ने लिए हुए थे। एनओसी से पहले यही होता है, 50 टिकट आप हमें देंगे, फिर वो आपस में बांट। जब उनकी फैमिलीज आने लगी और बोला भाई अब तो अपने ही वाले आ रहे हैं, तो कॉन्सर्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, इन्होंने बोला खल्ली वल्ली कैंसिल करो। हम कहाँ से दे? 72 लाख हम कमा नहीं रहे, रिश्वत कहाँ से दे? बोला बंद करो। हाँ ठीक है, लाइट उतार दो। फिर जब देखा अच्छा ये तो मान नहीं रहे और अपनों की ही अब गाड़ी आ रही, क्योंकि टिकट तो दे चुके थे, तो रिश्वत केम डाउन टू 4 लाख रुपए। ऐसे माहौल में कुछ आर्टिस्ट होगा जो यहाँ म्यूजिक करेगा, परफॉर्म करेगा, क्या मिल रहा है उसको? कुछ भी नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यही एक कमेडियन के साथ भी हुआ था। उन्होंने अपना शो डाला तो आया कि भाई 100 टिकट तो हमारे हैं, करके दिखा दो। आप कौन सा आर्टिस्ट यहाँ थ्राइव करेगा? जिसको अपने मुल्क में इज्जत नहीं मिल रही, बाहर का जाएगा? सो यस, टैलेंट है, हमें उस टैलेंट को पैकेज नहीं करना आता, हमें मार्केट नहीं करना आता, हमें ब्रांडिंग नहीं करने आती। इसकी सीधी सीधी मिसाल है, अगेन इंडियंस के नहीं उठा रहा, इंडिया में तो चैनल ही बैन है। आप देखें हमारे यहाँ कैसे एडवर्ड बनते हैं, इंडिया में कैसे एडवर्ड बनते हैं। सिंपल मिसाल है। तो क्योंकि उनको बेचना आता है, हमारे पास माल अच्छा है, बेचना ही नहीं आता, तो फिर किस काम का वो चीज़? सो अब इसमें ईगो बहुत बड़ा मसला है कि हमारे, वो कहते हैं ना, कमी को अगर आप थोड़ी सी पावर दे दो तो उसकी मिजाज ही नहीं मिलते। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ये भी बड़ा मसला है, उनके मिजाज नहीं मिलते, आजिज़ी नहीं है। दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन, कि कोई मशवरा भी दे रहा है कि, फिर वो किसी को कुछ मानते ही नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट के मैनेजर कौन होते हैं? उनके अपने भाई, कज़न, चाचे, ताए, मामे। उनका क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? कुछ भी नहीं है, बस क्या जी खून का रिश्ता है। तो नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। सो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान इज डेड। आप यूट्यूब भी देख लेना, यूट्यूब पे क्या मिलता है आपको? डू यू फाइंड एनी गुड कंटेंट टू वॉच? 25 करोड़ का मुल्क है यार, 25 तो अच्छे चैनल होने चाहिए ना आपकी, उसमें क्या मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता। वाई? बिकॉज अच्छी चीज़ लोग देखना नहीं चाहते, रिवॉर्ड भी नहीं है, रिवॉर्डिंग भी नहीं है, एंड या ओवरऑल टेस्टलेस लोग हैं यार। अब इस चीज़ पे सो फराज अनवर, वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन पाकिस्तान, उन्होंने एक वो लगाया कि वो फाइवर पे गिटार सोलोस बेचेंगे। सो मैंने उस पे लिखा कि इट्स सैड टू सी हिम डूइंग दिस। उस पे फराज अनवर साहब भी नाराज हुए खुद, और एक चुत्तू जर्नलिस्ट है वो, उसने भी इस चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखा। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिंग योर टैलेंट ऑन फाइवर। हांस जिमर भी जो है ना, मास्टर क्लास की कोर्स बेच रहा होता है। हांस जिमर को क्या जरूरत है, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग योर आर्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज, हांस जिमर बेचे कोई मसला नहीं, क्योंकि हांस जिमर साथ साथ ओटो अरीना भी बजा रहा है, ठीक है? मैं भी गया था उसके कॉन्सर्ट में, फजूल का पॉलिटिसाइज, यूक्रेन वाले कपड़े पहन के आया हुआ था, बट एनीवे ही इज ग्रेट एट व्हाट ही डज। माय पॉइंट वाज कि दिस गाय शुड हैव बीन प्लेइंग बिग अरीनास अराउंड द वर्ल्ड, बट आई डाउट आप में से कितने लोग जानते भी होंगे फराज अनवर के बैंड का नाम क्या था। आई एम श्योर नहीं पता होगा लोगों को। सो इज अ ग्रेट गिटारिस्ट बट सैडली लॉस्ट, और अब वो अमेरिका चले गए।
अब वो वहाँ पे बजा रहे हैं, तो कोई सीन ही नहीं है। सो माई आर्ग्यूमेंट वॉज नॉट कि वो फराज अनवर फाइवर पे क्यों बेच रहा है, ये कि माई आर्ग्यूमेंट वॉज कि भाई द गाय शुड बी सेलिंग आउट अरीनास, बट हमने उसको वो दिया ही नहीं, प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, उसको वो इज्जत ही नहीं दी। प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर की बात है। ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे उसने भी घर चलाना है, तो वो चलाएगा, तो ऐसे ही चलाया उसने। तो अफसोस की बात है। फराज अनवर के बैंड का नाम मिज़राब है। मिज़राब का एक एल्बम है माजी हाल मुस्तकबिल, असल में मेरा दिमाग कटलेट्स पे है। सो उसमें जो गाना है कितनी सदियां, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग मैन। और हाँ, माजी हाल मुस्तकबिल, आई वाज राइट, 2004 का एल्बम है। बड़ा व्हाट एन अमेजिंग एल्बम मैन। सुने स्पॉटिफाई पे, इट्स देयर। तो वी लॉस्ट दिस गाय बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट एनी सो भाई ये डेड मुल्क है यार। हमारी ना एज अ नेशन कोई सोल नहीं है, वो फजूल का शोर है। फजूल का शोर है ग्रेटनेस का, सोल नहीं है। सोल आती है सेंसिटिविटी से। सेंसिटिव हम है नहीं, शिद्दत पसंद है। तो शिद्दत पसंद आदमी लाउड होता है, ऑब्नॉक्शियस होता है, उसमें डेलिकेसी नहीं होती, डेलिकेट नहीं होता वो। और आर्ट डेलिकेसी से आता है, समझ रहे हैं आप। खैर, थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चन। मैं इसमें बहुत बोल सकता हूँ, बट आई रादर गो ईट या बकवास करने से। वी नॉट चेंजिंग एनीथिंग। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।